Bismillahirrahmanirrahim. In our previous two classes, we had studied uh, poem number 3 and poem number 4. Shabun Nabil, the name of third poem was Shabun Nabil, the noble youth, and the name of fourth poem was Ayyuhat Tullab, O students. These two poems we have studied in our previous two classes. Today, we are going to solve the exercises of poem number 4, Ayyuhat Tullab. 5 types of questions will be asked in your final exam from section poetry. Today we will solve those 5 exercises which will come in our exam. Okay. I will share the screen with you. You concentrate on the screen. We will study those 5 exercises. Repeat after me. Okay. पहले के 2 क्लासेस में हम जो है तीसरी पोएम शाबुन नबील और चौथी पोएम अय्युहत तुल्लाब पढ़े हैं। आज हम उसके एक्सरसाइजेस सॉल्व करने वाले हैं। सब में पहले हम फोर्थ पोएम के एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास मटेरियल है कॉलेज का तो फिर पेज नंबर 62 निकालिए, आप सामने रखिए और देखिए, या नहीं है अगर मटेरियल नहीं भी है तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पर देखिए। ओके, यू मे टेक आउट पेज नंबर 62 for these exercises. I am sharing the screen with you now. This is our first exercise. In the final exam, this will come in the section 1. This will come in your final exam, section 1, section number 1, in section number 1. He will ask you to Akmilil Baitain At-Taliyan Washrahuma Fi Lugatikum, complete the verses and explain in your own language. In this way, he will ask you the question. The line of the verse, the line of the poem will be given with the blanks in between them. Ayyuhat Tullabu, a blank will be given, and again the blank will be given. Lil Maali will be given. Watlubul Ilma, a blank will be given, and again the blank will be given. Zainun Lir Rijal. So you have to complete those blanks which are underlined here. You can see here the underlined words will not be given in your exam in the question. You have to fill these blanks. After filling these blanks, you have to explain them in your own language. Okay. Let us study. This carries 6 marks. Many students get confused that they will fill the blanks but they do not give the explanation. It is necessary, it is mandatory to give the explanation. If you don't give the explanation, you may lose 3 marks. By filling the blanks, you will get 3 marks, and for explanation, you will get 3 marks. If you miss the explanation, then you are losing, you may lose 3 marks. So I request to remember this. I request the students to remember this, that you have to give the explanation. In first year, there was no explanation. 2 lines you have to write in Arabic. That was in your previous year, first year. Now in second year, you have to fill the blanks along with the explanation. Got it? Now see. He is giving Ayyuhat Tullabu Qumu Bi'atizamin Lil Maali. Ayyuhat Tullabu Qumu Bi'atizamin Lil Maali. Watlubul Ilma Fa Innal Ilma Zainun Lir Rijali. These are the 2 lines.
फाइनल एग्जाम में आपको ये फर्स्ट सेक्शन में देता है 6 मार्क्स के लिए, और पोएम के लाइंस देता है, बीच में ब्लैंक्स रहते हैं, वो ब्लैंक्स को आपको फिल करना है और उसका जो है उसकी तशरीह एक्सप्लेनेशन लिखना है आपको। बाज़ बच्चे एक्सप्लेनेशन मिस कर देते हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अगर आप छोड़ देंगे तो 3 मार्क्स आपके चले गए समझिए। 3 मार्क्स आपको जो है ब्लैंक्स फिल करने के मिलेंगे और 3 मार्क्स एक्सप्लेनेशन लिखने के मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप अय्युहत तुल्लाबु क़ूमू, रिपीट आफ्टर मी, अय्युहत तुल्लाबु क़ूमू बिएतिज़ामिन लिल माली वतलुबुल इल्मा फ़इन्नल इल्मा ज़ैनुन लिर्रिजाली। ठीक है, नाउ द एक्सप्लेनेशन, तशरी। In the above 2 lines, the poet encourages the students to seek knowledge and to serve nation. ऊपर की 2 सत्रों में, ऊपर की 2 लाइनों में शायर जो है बच्चों की हिम्मत अफजाई करता है, तलबा की हिम्मत अफजाई करता है कि वो लोग इल्म हासिल करें और अपने वतन की खिदमत करें। वो ये कहता है, he says to the students, ओ स्टूडेंट्स, ए तालिब इल्मो, stand up with firm intention, stand up with great intentions to achieve high goals. पक्के इरादे के साथ, बड़े बड़े इरादों के साथ जो है खड़े हो जाओ ताकि ऊंचे मकासिद हासिल करें, ताकि ऊंचे मकासिद हासिल कर सको। एंड सीक नॉलेज एंड एजुकेशन, इल्म और तालीम हासिल करो, इल्म और तालीम हासिल करो, बिकॉज क्योंकि द नॉलेज इज लाइक ऑर्नामेंट टू द मैनकाइंड एंड ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बींग्स। इल्म जो है इंसान की खूबसूरती है, इंसानियत की जो है बका है, खूबसूरती है। In this way you have to fill the blanks and write the explanation. Now in section 2 he will ask you to write the summary. In section 2 he will ask you to write the summary. Here is section number 2. So how to produce the summary in the final exam? This will carry 6 marks. You have to give the summary in not less than 100 words. समरी यानी खुलासे के भी 6 मार्क्स होते हैं, 6 नंबरात आपको मिलेंगे। आपको कम से कम अकल जो है कम से कम जो है आपको 100 अल्फाज में समरी लिखना है। 100 से 150, 200 और 300 तक भी आप लिख सकते हैं, लेकिन 150-200 अल्फाज में आप समरी लिखना रहता है। तो लिखने का तरीका क्या है, कैसे हम समरी लिखेंगे एग्जाम में? तो यहाँ पर देखिए, पहले आपको हेडिंग बनाना है, समरी ऑफ सूरा ओ स्टूडेंट्स, समरी ऑफ ओ स्टूडेंट्स हमको समरी बनाना है, हेडिंग दे देना। ट्रांसलेशन ऑफ वर्सेस, यहाँ पर पोएम के लाइनों का तर्जुमा देना है। पहले पोएम के लाइंस का तर्जुमा देंगे। पहली लाइन में क्या बोल रहा है शायर, ओ स्टूडेंट्स स्टैंड अप टू अचीव ग्रेट हाइट्स, ऐ तलबा खड़े हो जाओ, विथ फर्म इंटेंशंस, यहाँ पर विथ फर्म इंटेंशन भी है, यहाँ पर मिसिंग है। ओ स्टूडेंट स्टैंड अप विथ फर्म इंटेंशन, पक्के इरादे के साथ खड़े हो जाओ, ऐ तलबा पक्के इरादे के साथ खड़े हो जाओ, टू अचीव ग्रेट हाइट्स, ऊंचे मुकामात हासिल करने के लिए, और जो है ग्रेट हाइट्स ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए खड़े हो जाओ पक्के इरादे के साथ। पक्के इरादे के साथ खड़े होने के बाद करना क्या है, वो दूसरी लाइन में ये कहता है, सीक नॉलेज बिकॉज द नॉलेज इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, इल्म हासिल करो क्योंकि इल्म जो है इंसान की खूबसूरती है। अचीव रेस्पेक्ट विथ यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑलवेज, इज्जत हासिल करो इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इज्जत हासिल करो। बी अवेयर, खबरदार, दैट द डिवीजन इन द पीपुल लीड्स टू द एंड ऑफ नेशन, खबरदार हो जाओ, ये जान लो कि
तफरीक़ा पैदा करना लोगों में, ये वतन के ज़वाल का सबब बनता है और हमारे मुल्क के जो है तबाही और बर्बादी का सबब बनता है। एब्सटेन फ्रॉम लाइज एंड स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। शायर ये नसीहत करता है कि झूठ यस यहाँ पर इन द फोर्थ लाइन, बी अवेयर, खबरदार हो जाओ, दैट द डिवीजन इन द पीपुल लीड्स टू द एंड ऑफ नेशन। लोगों में तफरीक़ा पैदा करना ये वतन के ज़वाल का सबब बनता है, वतन के ज़वाल का सबब बनता है। फिफ्थ लाइन में, एब्सटेन फ्रॉम लाइज एंड स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। झूठ से बचो और हमेशा सच को लाजिम पकड़ो, सच बोलो। कीप ऑन सर्विंग द नेशन बिकॉज इट इज़ अ गुड डीड। हमेशा वतन की खिदमत में लगे रहो क्योंकि वतन की खिदमत एक बेहतरीन काम है। हैव पेशेंस एट द टाइम ऑफ क्लैमिटीज है हार्डशिप्स। सब्र करो मुसीबत और जो है मसाइब के वक्त, मुसीबतों के वक्त, मुश्किलात के वक्त सब्र करो। स्टैंड अप लाइक माउंटेन अगेंस्ट देम। पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह उनके खिलाफ, उनके सामने खड़े रहो, मुसीबतों का सामना करो। आगे क्या कहता है शायर देखिए। सैयद नबी हैदराबादी रोड दिस पोएम। अब यहाँ से खुलासा शुरू हो रहा है। हमको पहले पोएम के जो लाइन्स है उसका ट्रांसलेशन लिखना है समरी में, उसके बाद हमको वही ट्रांसलेशंस को जो है अपने ओन वर्ड्स में प्रोड्यूस करें तो समरी बन जाती है। सैयद नबी हैदराबादी रोड दिस पोएम। सैयद नबी हैदराबादी जो है ये नज़म लिखे हैं। एंड एडवाइजेस द स्टूडेंट्स टू सीक नॉलेज टू बिकम सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। और मशवरा दिए हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तलबा को कि वो इल्म हासिल करें ताकि अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। द नॉलेज एंड विजडम आर द कीज ऑफ प्रोग्रेस। कामयाबी वो कामरानी की चाबी इल्म व हिकमत को करार देता है शायद। इल्म व हिकमत कामयाबी वो कामरानी की चाबी है। फर्दर ही स्टेट्स दैट द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ, that the secret of successful nation lies in unity and integration, whereas division in the name of। शायर ये कहता है कि वतन की फलाह व बहबूद छुपी हुई है, मुज़मिर है इत्तेहाद व इत्तेफाक में, जबकि तफरीक़ा वतन में जो है तफरीक़ा पैदा करना वो क्या है, इन द नेम ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर लीड्स टू द एंड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेशन। तफरीक़ा पैदा करना लोगों में मज़हब के नाम पर, ग्रोह के नाम पर और जो है जिन्स के नाम पर, ये क्या है, तबाही और बर्बादी का सबब है, मुल्क के तबाही और बर्बादी का सबब बनता है। We are continuing the summary. Whereas division in the name of caste, creed, religion and gender etc. leads to the end and destruction of nation. मज़हब के नाम पर तफरीक़ा पैदा करना, ग्रोह के नाम पर और जो है जिन्स के नाम पर या फिर जो है कास्ट, क्रीड, सेक्ट के नाम पर मज़हब जो है तफरीक़ा पैदा करना, लोगों में फूट डालना, ये जो है वतन की तबाही बर्बादी का सबब बनता है। He also asked the students to impose on themselves the truthfulness. शायर तलबा से ये भी कहता है कि वो अपने ऊपर सच को लाजिम कर लें, and abstain from lies, और झूठ से बचें। He also advises the students to keep on serving nation. वो ये भी मशवरा देता है तलबा को कि वो अपने वतन की खिदमत में लगे रहें।
ही कंसिडर्ड द सर्विस ऑफ नेशन एज ए बेस्ट डीड, क्योंकि वो जो है ख्याल करता है कि वतन की खिदमत बहुत बेहतरीन काम है, ये जो है उन्हें कंसिडर करता है, वतन की खिदमत को बेहतरीन काम है बोल के बोल रहा है। एट द एंड ही advises the students to stay firm against the hardship of society, nation and country like the mountain। आखिर में वो ये कहता है बच्चों से कि जो है मुसीबतों के खिलाफ और जो है माशरे के मुसीबतों के खिलाफ, जो है वतन की मुसीबतों के खिलाफ पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह खड़े रहो, उनका मुकाबला करो, हिम्मत अफजाई कर रहा है बच्चों की। दिस वॉज दी समरी ऑफ अय्युहत तुल्लाब। ये खुलासा है अय्युहत तुल्लाब का। अगर एग्जाम में दिया तो एज इट इज प्रोड्यूस कर दीजिए आप लोग, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, हियर सेक्शन नंबर 3। ये जो सेक्शन नंबर 3 है आपके फाइनल एग्जाम में जो है सेक्शन नंबर 5 में आता है। सेक्शन नंबर 5 में आपको पूछा जाता है उज़कुर मर्जा हादिहिल अबियात, गिव रेफरेंस इन अरबिक ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस। गिव रेफरेंस इन अरबिक ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस, आने वाले पोएम के लाइनों का हवाला लिखिए अरबी में। अय्युहत तुल्लाब खुमू बिएतिज़ामिन लिल माली, पोएम की लाइन दे देता है आपको और पूछ रहा है कि ये कौन से पोएम की लाइन है। तो अब आपको अरबी में जवाब लिखना है। जीम मतलब जीम स्टैंड्स फॉर जवाब, जीम यहाँ पर जवाब के लिए लिखा गया है। हादल बैतु मिन उनशुदती अय्युहत तुल्लाब, दिस वर्स बिलोंग्स टू द पोएम अय्युहत तुल्लाब ओ स्टूडेंट्स। You have to by heart this line, Hadal Baitu min unshudati ayyuhat tullab. The name of the poem will change, but the previous this line will not change. Hadal Baitu min unshudati, this verse belongs to the poem, remains as it is for all poems. Here the poem name will be changed. ये जो पहले की लाइन है हादल बैतु मिन उनशुदती, ये हमेशा ऐसे ही रहती है, इसको अच्छी तरीके से याद रख लेना और एक 10 टाइम्स लिख के इसकी प्रैक्टिस कर लेना और याद करते हुए लिखना हादल बैतु मिन उनशुदती, हादल बैतु मिन उनशुदती, ये वर्क है आपका। अय्युहत तुल्लाब ये पोएम का नाम है। कभी क्या है पोएम का नाम जो है पोएम की लाइन में ही होता है, जैसे यहाँ पर है देखिए अय्युहत तुल्लाब, अय्युहत तुल्लाब और अय्युहत तुल्लाब, तो पोएम ये अय्युहत तुल्लाब अगर आ जाए तो आप समझ जाना कि ये अय्युहत तुल्लाब का जो है ना क्या है पोएम है। नाउ वतलुबुल इल्मा फइन्नल इल्मा ज़ैनुल लिर्रिजाल, ये कौन से पोएम की लाइन है पूछ रहा हूं। टू विच पोएम दिस लाइन बिलोंग्स, तो यू हैव टू गिव द आंसर। हादल बैतु मिन उनशुदती अय्युहत तुल्लाब, this verse belongs to the poem O students। in this way you have to, what you have to do, you have to write in your exam. You have to practice this line by writing 10 times till you remember it without, till you become capable of writing without seeing. Okay, 5 times, 10 times, whatever the figure you know, you may write. Now come to next section, question and answers. Question and answers will be asked in the exam. Here, answer the following questions in Arabic, carry 6 marks. He will give you 5 questions. Out of 5 questions, you have to write 2 questions in the final exam, carries 6 marks. Each question carries 3 marks. फाइनल एग्जाम में ये आपको जो है 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं पोएम के, जिसमें से आपको लिखना होता है दोनों का, 2 क्वेश्चंस का, 2 सवालात का जवाब लिखना है, जैसे यहाँ पर दिया है, जिसके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, हर एक के 3-3 मार्क्स रहेंगे। पहला क्वेश्चन है माहिया जीनतुल मरई, माहिया जीनतुल मरई, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान की खूबसूरती क्या है।
जवाब अल इल्मु जीनतुल मरई, अल इल्मु जीनतुल मरई, इंसान की खूबसूरती इल्म है। द नॉलेज इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट, कैफा नतलुबुल इज्जा, हाउ कुड वी अचीव रेस्पेक्ट, हम कैसे इज्जत हासिल कर सकते हैं। नतलुबुल इज्जा बित्तिहादिन, वी कुड अचीव, वी कैन अचीव रेस्पेक्ट थ्रू यूनिटी, इत्तेहाद के साथ हम इज्जत हासिल कर सकते हैं। हल सिद्कुल मखाली लाजिमुन, इज ट्रूथफुलनेस, इज स्पीकिंग द ट्रूथ एसेंशियल, नेसेसरी, क्या सच बोलना जरूरी है, लाजिम है। तो जवाब क्या है इसका, जवाब है नआम, नआम सिद्कुल मखाली लाजिमुन, यस स्पीकिंग द ट्रूथ इज नेसेसरी, सच बोलना लाजिम है। मादा खैरु फ़ियालिन, व्हाट इज द बेस्ट एक्ट, बेस्ट वर्क, बेस्ट डीड, बेहतरीन काम क्या है, बेहतरीन खसलत, बेहतरीन चीज क्या है, पूछ रहा है। द आंसर इज खिदमतुल कौमी खैरु फ़ियालिन, सर्विंग द नेशन इज द गुड एक्ट। इसका आंसर यहां पर नीचे है, देखिए, सर्विंग द खिदमतुल कौमी, खिदमतुल कौमिन खैरु फ़ियालिन, serving the nation, serving the people of nation is the good and best act। यहां पर देखिए आप, खिदमतु कौमिन खैरु फ़ियालिन, सर्विंग द नेशन इज द गुड एक्ट, ये कहा जा रहा है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्न द पेज, कम ऑन पेज नंबर 64। हियर हल शतातुल कौमी उन्वानुल ज़वाल, is division in the people, division in the nation leads to end of nation, is division in the people leads to the end of nation। क्या कौम में तफरक़ा पैदा करना ये ज़वाल का सबब बनता है, नाकामयाबी न नामुरादी का सबब बनता है। जवाब है नाम, यस, शतातुल कौमी उन्वानुल ज़वाल, डिवीजन इन द पीपुल लीड्स टू द एंड ऑफ नेशन, ये कहा जा रहा है उसमें। One more section will be given, that is 1 marks, that is one word answer section। Okay, he will give you the question ajiban ilatil atiya bi kalimatin wahida, answer the following questions in 1 word। He will ask you in the exam, write the answer in 1 word in Arabic, एक लफ्ज में अरबी में जवाब लिखो। क्वेश्चन भी अरबी में आएगा, आपको आंसर भी अरबी में लिखना रहेगा। यहाँ के ये 5 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हल अल इल्मु ज़ैनुन लिर्रिजाल, इज द नॉलेज ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। आंसर इज गिवन नाम, यस, नाम मीन्स यस। हलिल इल्मु ज़ैनुन लिर्रिजाल, नाम, क्या इल्म इंसान की खूबसूरती है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिदमतु कौमिन खैरु फ़ियालिन, इज सर्विंग द नेशन considered as a best work, is serving the nation a best work, क्या वतन की खिदमत बेहतरीन काम है। अखिदमतु कौमिन खैरु फ़ियालिन, नाम, नाम के माने यस है। अब आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब कभी भी क्वेश्चन हल और ये आ यानी हमज़ा से शुरू होता है, इन दोनों के जवाब में ज़्यादातर नाम बोल के आपको आंसर में लिखना होता है। तो ये
चीज़ें आप जहन में रखिए. Whenever the question is asked with the word hal and with the word a, the answer will be naam. Yes. Okay. Next question is ayyu shay'in lazimun lil qawmi? Which thing is necessary for the nation, for the people? क्या चीज़ ज़रूरी है इंसानों के लिए, क्या चीज़ ज़रूरी है कौम के लिए, क्या चीज़ ज़रूरी है, पूछा जा रहा है. जवाब है अस्सिद्क़ु, द ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, सच. सच ज़रूरी है, सच्चाई ज़रूरी है लोगों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज हल सब्रु वाजिबुन लित्तुल्लाब? इज पेशेंस एसेंशियल फॉर द स्टूडेंट्स? क्या सब्र करना तलबा के लिए ज़रूरी है? जवाब है नाम, यस, हाँ. पेशेंस, सब्र तलबा के लिए ज़रूरी है. असातिज़ा की डांट पर सब्र करना चाहिए, और जो है जो भी ज़्यादा वर्क दिया जा रहा है, कुछ ज़्यादा वर्क है तो भी उस पर सब्र करना चाहिए और काम करना चाहिए, ये कहा जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मा हुवल मतलूबु बित्तिहादी वत्तिसाली? What is intention behind the unity and integration? What is the intention behind the unity and integration? What is demanded from the unity and integration? क्या चीज मतलूब है इत्तेहाद और इत्तेफाक से? इत्तेहाद और इत्तेफाक से हम क्या चीज चाहते हैं, क्या है हमारा मतलूब, क्या है? तो जवाब है अल इज्जा. अल इज्जा, अल इज्जा यानी द रेस्पेक्ट, ऑनर. वी डिमांड ऑनर and respect from the unity and integration. इत्तेहाद और इत्तेफाक से हमारा मकसूद और मतलूब इज्जत है, कामयाबी वो कामरानी है, ये कहा जा रहा है. These are the 5 types of questions will be asked in your exam. Another section is there, fill in the blanks. This will not come in your exam. Fill in the blanks will be asked from the grammar section, not from the poetry section. So it is not necessary to study the blanks of poetry section. You may leave it. Okay, you may leave the blanks of poetry and prose, but you have to study the blanks of, fill in the blanks of grammar section, because in the exam he will ask you the blanks of grammar section. Blanks will come from grammar section, not from the poetry or prose sections. Got it?